Jai Hind friends, today we are starting the session of Vartalap with another war hero. The units came in our mind whenever we talk about the Kargil war, and obviously the unit of 13 Jackreef is one of the prominent units that always we remember whenever we are talking about Kargil. And today we have with us Gurpreet Singh sir in this session of Vartalap, who will share with us about the journey of 13 Jackreef in the Kargil war. And here I would like to mention that sir was the company commander of the Paramveer Chakra winner Subedar Sanjay Kumar. So we are honored, sir, to welcome you on the platform of Desh. And now you can start, sir, with your story of Kargil. Thank you so much. First of all, let me say that it is a great honor to come on this platform and talk to you, all of you. It was actually, I know it was long pending. I had a long desire to speak to all of you, meet all of you. Well, Kargil, as of now, 21 years ago, is ongoing. अभी चल रहा होगा इस समय अगर आप flashback में जाएं. So today being first, I was probably yes, if I remember correctly, I was sitting at Mashko Valley, exactly place called Mashko Village. और हमारे यूनिट ने वहाँ आकर के अपना टेंट्स वगैरह लगा करके हम लोग रिलैक्स कर रहे थे. एंड टुडे बीइंग माय बर्थडे, I requested the CEO, Colonel Joshi, at that time Colonel Joshi, now General Joshi, कि सर मेरे को अपने घर से बात करनी है. और उस समय कोई मोबाइल फोन्स नहीं होते थे. There was only those satellite phones, or you had to go about 20-25 kilometers, 30 kilometers to Tras, or probably even further than that to access any STD. एक आध STD था. So I requested him and I said, sir, I need to speak to my family. So he said, yes, of course. So I still remember vividly that I spoke to my wife and she wished me happy birthday, and she knew that I was in the war zone. तो मैंने उसको ये बुरी खबर दी कि मैंने कहा भाई अब मेरी बारी है. So I was, by the time I knew, because Deepak here knows that इसके पहले का एपिसोड क्या हुआ था जब हम गुमरी में थे. तो and before that, when I met my company at Tololing Top, so the company had said के सर हम लोग रह गए, बाकी सबने तो ग्लोरी ले लिया. So my company, that is Charlie company, was actually reserved because it did not have a company commander as I was doing my JC course. तो मैं वो JC कोर्स करके जैसे ही पहुंचा था तो वो कंपनी ने बोला था कि साहब हम लोग रह गए, हमारा क्या होगा. तो आई हैड टोल्ड देम एट दैट टाइम कि डोंट वरी, अगर अगली बार हमारा कोई ऑपरेशन होगा तो वी विल लीड. एंड मैंने ये कर्नल जोशी से एक प्रॉमिस लिया था कि सर अगली बार अगर कोई भी ऑपरेशन होगा तो ये आपका वादा रहा कि मेरी कंपनी वो ऑपरेशन लीड करेगी. एंड ही हैड प्रॉमिस्ड मी. सो आई न्यू दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस असॉल्ट ऑन पॉइंट 4875. एंड फर्स्ट को हमने जाना था रेकी पे. वी वर सपोज टू गो ऑन अ रेकी ऑफ द ऑब्जेक्टिव. बट मैंने जो सर को बोला, मैंने कहा सर आज नहीं जाऊंगा मैं, आप कुछ भी कर लीजिए, आज मेरा बर्थडे, आज मैं घर में बात करूंगा लोगों से, इसके बाद क्या पता मौका मिले ना मिले. आई एम सॉरी, जस्ट वन से. तो he had agreed to it, and subsequently, next day, that is second, myself and General Joshi, we went on a aerial recce thereafter. तो उन्होंने बोला था ठीक है मैं तुम्हारे को हेप्टर पे लेके जाऊंगा. So that was it. I spoke to my wife and I said कि भाई अब मेरी बारी है, मैं जा रहा हूँ. So like normal families and ladies and all,
little senti, and then they wished कि okay ठीक है आप Vijay Bhava and whatnot. In our language in Punjabi they said के जा जीत के आई and all that. So that is how it started. It began for me, and thereafter our batter pushes started. और उसके बाद की कहानी आपने पूरी की पूरी दीपक की बुक में पढ़ी होगी. It so happened that I was the company commander and I was leading these guys, these brave men, and somehow we were able to reach on top. Difficult था वो terrain. अब मैं जब गया था वापस पिछले साल, तो मैं खुद ऊपर देख करके ऐसे देख रहा था ऊपर पहाड़ में, बोला था हम ये चढ़ गए क्या यार. I was speaking to, but उस टाइम का माहौल अलग था. It was that जोश, that euphoria, and that everybody coming together. So we climbed, and our aim was to reach in the night itself the top of a place called 4875. Deepak knows it had two features, 4875 and flat top. So my task was to capture flat top, and there was another company coming under that time Major Bhaskar, now Brigadier Bhaskar, on the other side, and we were to capture pura ka pura feature and marry up, and then subsequently, so that was the plan. तो हम चढ़ते चले गए, वो रास्ता खत्म ही ना हो. पूरी रात चलते चलते हमने कहा यार ये पहुंच कहाँ रहे हैं. मतलब एक हर रिज के ऊपर चढ़ो तो ऐसा लगे कि यार ये आ गया दुश्मन का बंकर. जैसे ही वो ऐसा लगे तो हम लोग अपना वो बैटल प्रोसीजर्स तैयार कर लेते थे कि हाँ भाई चलो अभी अटैक इधर से करना है, उधर से करना है. जब वो सब कुछ करके पहुंचते तो बोलता रहे नहीं 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 ये वाला नहीं अगला वाला है. सो ये करते 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 वो पूरी the entire night was spent in that. And there was one final rocky sort of a feature which I have called knob, and even Deepak has in his book written it as knob. बस वो बड़ी मुश्किल से हम चढ़े. एक सेक्शन आगे था और मैं था और मेरे 2-3 बंदे थे. हम लोग चढ़ा के वो नॉब को ऊपर पहुंचे. इतने में वो सूरज थोड़ा सा चढ़ने लगा, एंड it became light. तो जब वो रोशनी हो गई तो हमने देखा कि अरे ये तो अभी भी तकरीबन 200 मीटर दूर है द ऑब्जेक्टिव. एंड हम लोग द एंटायर कंपनी वाज नीचे. मेरे साथ एक सेक्शन, हम लोग ऊपर फंसे हुए थे वहां उस नॉब के ऊपर बैठ करके. और फिर दुश्मन ने वहां पे अच्छा खासा फायर करना शुरू किया. दे स्टार्टेड फायरिंग लाइक एनीथिंग. ऑल हेल ब्रोक लूज. They fired all kinds of automatic weapons. Luckily artillery fire नहीं किया उन्होंने, वरना तो हम सारे अभी आप लोगों से बात नहीं कर रहे होते. But they fired RPGs, they fired everything else except the artillery fire. So ये situation में हम आकर के फंस गए थे. एंड व्हाट वी कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज हमारे पे बहुत फायर आ. बाद की बात है, वो बाद में हमें पता लगा कि एक पर्टिकुलर बंकर में 4 से 5 जिसको यूनिवर्सल मशीन गन बोलते हैं, यूएमजी बोलते हैं, ऑटोमेटिक मशीन गन होती है, वो लगा करके वो फायर कर रहे थे एक संगड़ से. तो ऐसे 3 संगड़ या 4 संगड़ थे जिससे फायर आ रहा था. वो तो आप सोच सकते हो कि हमारे पे कितना फायर आ रहा होगा. हमें पता ही नहीं चला हो क्या रहा है यहाँ पे. So that was the situation at that time. And इसके पहले एक और एपिसोड हुआ था जो आई थिंक दीपक ने अपनी बुक में लिखा भी है, दैट वो जो रॉकी नॉब सा जो हम फीचर था वो चढ़ रहे थे, तो मेरे पीछे, मतलब बिहाइंड द कंपनी कमांडर इज द कंपनी कमांडर्स, ऑलवेज फॉलोइंग इज द कंपनी कमांडर्स रेडियो ऑपरेटर. वो अपना वायरलेस सेट लेके चलता होता है और कोई भी कम्युनिकेशन हो, कुछ भी हो, तो वो फटाफट आ जाता है कंपनी कमांडर के पास एंड ही सेज के ये. तो वो मेरे पीछे पीछे चल रहा था जब मैं ऊपर क्लाइंब कर रहा था. इट वाज वर्चुअली क्लाइंबिंग, और जिसको रॉक क्लाइंबिंग बोलते हैं. और अंधेरे में थे, हमें कुछ पता ही नहीं था हम क्या चढ़ रहे हैं, कहाँ चढ़ रहे हैं. पर जहां अगले का पैर लगा वहां हाथ लगा दिया और चढ़ रहे थे. बिल्कुल पिच डार्क.
तो वो जो मेरे पीछे वाला था, मेरा जो रेडियो ऑपरेटर था, वो बेचारा उसने कहीं हाथ लगाया, कुछ लगाया, ही वो स्लिप हो गया. सो ही स्लिप्ड एंड ही फेल्ट 40 feet डाउन along with the radio set. वो फिर हम वहां पे भी हमारे को थोड़ा टाइम लगा जस्ट टू रिकवर हिम. तो पता लगा कि भाई वो ही इज ओके, ही इज गॉट इंजर्ड. उसका मेरे ख्याल से कुछ हिप या कुछ फ्रैक्चर हुआ था, बट ही वॉज अलाइव. लेकिन रेडियो सेट तबाह हो गया था, खत्म हो गया था, जो वायरलेस सेट है. सो आई वॉज, उसके बाद जब सुबह जब वो रोशनी हुई तो आई वॉज ऑन टॉप 200 meters from the enemy Sangad with heavy firing coming on to me and no means to communicate with anyone, क्योंकि वो रेडियो सेट तो टूट गया था, खत्म हो गया था. सो पहली चीज मेरे दिमाग में है कि भाई बस आप आज गए, आप आज नहीं बच सकते. दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड कि नोबडी कैन सेव मी नाउ. सो मेरे साथ जो 2-3 थे, अनुसुया इज गॉन आउट आई थिंक. No, not gone. She just आ गए. या सो वो लोग जो मेरे साथ थे, दे सेड कि साहब अभी कुछ तो करना पड़ेगा, वी कांट, एंड वी रियलाइज वी कैन डू नथिंग. आई मीन वी हैव टू गो अहेड, देयर इज नो वी कैन गो बैक. सो वी हैव टू गो अहेड एंड वी हैव टू कैप्चर एक सेक्शन और मेरे साथ 2 जवान और. दैट वाज ऑल दैट वी हैड, मे बी 12 पीपल. So then I said कि let me communicate, let me find out. So जनरली एक कंपनी जब मूव करती है तो उसके साथ एक आर्टिलरी का ऑब्जर्वेशन ऑफिसर बोलते हैं उसको, ओपी ऑफिसर, एफओ, फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर, वो भी चलता है. और उसके पास एक दूसरा वायरलेस सेट होता है जो अपने चैनल के ऊपर वो ही इज कम्युनिकेटिंग टू गेट डाउन आर्टिलरी फायर. सो आई सेड व्हाई नॉट लेट मी गेट हिज wireless set. Luckily that guy Colonel Ganesh Bhatt, he was my coursemate. So हम साथ ही चल रहे थे. So मैंने मैसेज पहुंचाया उसको ऊपर से. वो मैसेज पहुंचाना भी बड़ा मुश्किल था, ऊपर से आवाज मार मार के नीचे, इट्स क्वाइट डाउन बिलो. सो आई सेड यार सेट भेजो. तो वो सेट उसने, देन वो हमने कोई रस्सी वस्सी फेंकी, उससे उसका वो सेट ऊपर खींचा, एंड देन वी ब्रॉट. एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू कम्युनिकेट टू Colonel Brigadier Bhaskar at that time, जो मेजर भास्कर, the other company commander, कि सर अभी मैं तो फंस गया हूं, अब आप कुछ करिए. वो that is all recorded, that conversation is recorded. He has heard it, Deepak has heard it. So मैंने बोला मैं फंस गया, अब आप करिए अटैक और आप ही कैप्चर करिए, मैं तो नहीं ऊपर आ सकता, मेरे पे तो बहुत फायर आ रहा है. So he said ke yaar, we were using our code names. He was Khalifa, I was Akbar. So he said ke Akbar yaar, main bhi, I am also stuck badly, because and he had suffered a fatal casualty at that time. वो ऊपर से इतना आ रहा था that he suffered a fatal casualty. The other company, that is Alpha company. So हम ये बात कर रहे थे कि क्या करें, कैसे करें. इतने में जनरल जोशी का बीच में, you see in a wireless set you can always listen to everything what is happening. So General Joshi, that time our CO Colonel Joshi, he came into the set and he spoke to me कि यार क्या करना है, what do you want, shall I get artillery. ये discussion हुआ था, although it is not recorded in that, but shall I get artillery. सो आई सेड कि सर आर्टिलरी तो 200 मीटर है, वो तो आर्टिलरी तो हमारे ऊपर ही आ जाएगी, फायर करेगी, तो हम लोग तो वी आर ओपन इन दी ओपन, सो आई विल नॉट रिकमेंड. सो ही सेड कि फिर क्या करें. देन वी डिसाइडेड कि अच्छा मिसाइल फायर करते हैं. तो ही आजमी के किस पे करना है बता मेरे को, तेरे को सबसे ज्यादा कौन परेशान कर रहा है. तो आई सेड सर वो एक ही संगड़ है, फ्लैट टॉप का संगड़ है, आप बस उस पर फायर करो. So he fired 2 missiles on that, and for some time after he fired, वो hit हुई missiles. The fire from that place stopped. बाकी सब तरफ से आ रहा था, but उस particular जो हमको तंग कर रहा था सबसे ज्यादा, उससे थोड़ी देर के लिए रुक गया. And this is the window that we took. ये वो battle है जो battle है which is won
Sanjay, his PVC, and Shyam, his VRC, and all those who participated in that, some award or the other. So I cannot say how it happened, because वो तो जो हुआ तो वो तो हुआ था, but it was a very, very slow progress for this 200 meters. You can imagine so much of fire was coming on us that we took almost 5 hours to cover this 200 meters and capture that particular one Sangad, जो हमने capture किया flat top, and then everything was, then things came to this thing. हाँ, लेकिन मेरा कोई इतना ड्रामेटिक सक्सेस सिग्नल नहीं था, ये दिल मांगे मोर ओ या और समथिंग लाइक दैट. वो यंगस्टर्स ने किया था पहले, but yes, I gave my success signal. In fact, General Joshi was watching everything. So before I could give my success signal, he said कि यार तू बंदा बढ़िया है and all that, that euphoria. So he himself said कि यार, and he could see कि हमने पर लिया, because हमारे बंदे जब ऊपर कैप्चर कर लिया ना वो फ्लैट टॉप. दिस दीपक you also don't know. तो वो बंदों ने जब कैप्चर कर लिया ना, they started dancing there. All of us. पकड़ लिया हमने, कैप्चर कर लिया. इतने परेशान हो गए थे हम कि यार इसको इन्होंने तंग कर दिया. And he could see us dancing from down below ना, binoculars लगा के. So then he told कि यार you guys are so ये वो करके ना, वो बड़ा तो हो ही जाता है, मतलब तारीफें ये वो. So that is how 4875 flat top was captured. And then once it was captured, of course we did sustain a lot of casualties, but once it was captured, then I पूरी कंपनी को मैंने बोला कि अब आप लोग ऊपर आओ. बैलेंस कंपनी को बोला कि जो अल्फा कंपनी का ऑब्जेक्टिव था उसको भी हमने असॉल्ट कर दिया और उसको भी कैप्चर कर दिया. दैट इज 4875 टॉप. So there were two objectives. One was my company, one was Alpha Company. Alpha Company नहीं आ पाया था, हमने किसी तरीके से कर लिया अपना. So बाकी कंपनी ने वो बैलेंस, we cleared the entire objective. And this is actually the battle of 4875. Yes, Sanjay was the person who showed exemplary courage in that. वो आपने उसका सुना भी होगा कई जगह पे, that वो संगड़ के पास पहुंचा था. There was a lot of fire coming. There were two UMGs firing. So उस संजय से इसके मेरे को नतेंद्र ने दिया है, ये तो उन दोनों के आपस की बात है तो probably. But what he did was he जो हमारे को मिलती हैं पट्टियां, तो we get those first field dressing we call that. It's basically that when you get a gunshot, so bleeding होती है, उस bleeding को रोकने के लिए we have those field dressing. तो वो field dressings हम कस के बांध देते हैं जहाँ पे भी bleeding होती है. तो हर एक बंदे को एक field dressing मिलती है और एक shell dressing होती है. Shell dressing is basically if it is an artillery shell का कोई splinter है, basically उसमें bleeding ज्यादा होती है, तो it is a better this thing. So वो देते हैं. तो वो उसने rather than कहीं लगाना, उसने अपने हाथों पे बांधा था, एंड देन उसने वो 2 बैरल्स को पुल आउट किया था मशीन गन्स की. फायरिंग रेड हॉट बैरल्स को दोनों हाथों से पकड़ के बाहर खींचा था, और फिर उसने अपना अंदर ग्रेनेड फेंका और फिर अपने AK से पूरा फायर कर दिया अंदर उस संगड़ में. एंड दैट वाज द एक्चुअल यू कैन से लास्ट मिनट एक्शन. उसके बाद सबने डांस किया था. So that is how it is. That is how it happened. बाकी बहुत सारे एपिसोड्स हैं इस बीच में, काफी कुछ होता रहा था. मतलब we lost Shyam. Shyam was my buddy at that time. So those things are there. Everybody was injured. In fact, सबको गोली लगी थी, and all of them did a fantastic job. All the entire section, including there was one JCO Ramesh. Subedar Ramesh tha wo. He got a Sena medal, but when he came back, Kargil khatam ho gaya. He was posted to Rashtriya Rifles, and then he lost his life in Rashtriya Rifles in one of the operations. So this is in a nutshell how it happened. उसके बाद का किस्सा और है.
कैप्चर तो हमने कर लिया था, बट देन वी हैड सो मेनी कैजुअलिटीज दैट उस टाइम पे क्या होता है कि एक कैजुअलिटी अगर कोई हो जाती है तो उसको आपको इवैक्यूएट करना पड़ता है. सो व्हेन यू इवैक्यूएट, एक आदमी के पीछे मिनिमम 4 लोग तो जाते ही हैं, बिकॉज वो उसको कैरी करते हैं, स्ट्रेचर में कैरी करते हैं. सो दे आर आउट ऑफ द बैटल जोन. सो जब हमने इवैक्यूएट किए सारे के सारे, तो माय कंपनी वाज वर्चुअली रिड्यूस्ड टू जस्ट अ प्लेटून. मतलब कुछ लोग इंजर हो गए थे, कुछ उनको लेकर के नीचे गए थे. सो फिर उस प्लेटून को हमने एडजस्ट किया. देन आई एडजस्टेड द एंटायर कंपनी. एक सेक्शन वाज ऑन 4875 टॉप, 8 सेक्शन वाज ऑन फ्लैट टॉप. कंपनी हेडक्वार्टर को मैंने बीच में एडजस्ट किया. इन द मीन टाइम जो डेल्टा कंपनी थी जिसमें विक्रम बत्रा था एज द कंपनी 2IC, वो भी कंपनी हमारे पास आकर के मेरी अप कर गई थी एट माय लोकेशन जहां पे मैं था. सो दिस इज व्हाट वी did, and we finished by, was it 5th, Deepak? Sir, 5th की including रात. ledge, sir. Ledge. No, not ledge, only Fifth. flat top. Fifth, sir. It was 5th. अब Fifth मेरे लिए afternoon, मेरा evening. इसका ज्यादा वो है recent. My memory has become a little hazy. So it was Yes, 5th sir. evening. Encyclopedia. हाँ. So 5th evening, this is what we did, and we got settled. 6th का किस्सा दूसरा है. उसमें फिर then the gallantry of Vikram Batra and other Raghunath, and then Delta company taking on ledge. अभी तक हमें ledge का पता ही नहीं था. हमने सोचा था हमने तो ये जीत लिया भाई, खत्म हो गया काम. और we were giving support to 17 जाट. जो 17 जाट फिर कैप्चर कर रही थी वेल बैक करके एक पीछे. वो भी किस्सा दीपक की बुक में है, बड़ा अच्छा लिखा है. So we supported that operation, and thereafter next day early in the morning, then Naveen, जो मेरा company 2IC था, he got injured, and then Vikram took a patrol, नीचे circumvent करके he went behind enemy and captured another Sangar पीछे. Then he received gunshot wound there after capturing. So वो एक अलग किस्सा है. वो अगले दिन का किस्सा था जब ये हो गया हमारा. ऑल्दो विक्रम का अगर मैं किस्सा सुनाऊंगा तो वो पूरा का पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये दीपक को मालूम है. तो बट ही वाज एबल टू. Sir, we will love to listen. ओके. सो यू सी व्हाट हैपेंड वाज 5th को हम लोग ये हमने ये कैप्चर कर लिया और हम स्टेबलाइज हो गए. अच्छा, अब ये 2 दिन मतलब हम 1.5-2 दिन से हम चले हुए थे. हमारे पास कुछ खाने पीने को तो था नहीं. वी वर जस्ट कैरिंग दोज सिंपल थिंग्स, व्हाटएवर जो आप ले सकते हो. पूरी नमकीन पूरी ले गए और चिक्की. वो यूफोरिया तो था उस टाइम पे. वहां बड़े नीचे से बहुत सारा सामान आता होता था. लॉट ऑफ firms used to send a lot of things. So कोई चिक्की भेजता था, कोई चॉकलेट्स भेजता था. So we were carrying all that. और हम लोगों ने फिर वो we had that whatever rations we could have. And रात हो गई तो नवीन अन्ना बेरू, you know him, you must have met him also. हाँ. So Naveen was my company 2IC, second in command, and he, being an EME officer, he was an attachment to our unit, and he had spent just about maybe 5 or 6 months in the unit. So जब हमने ये कैप्चर कर लिया सारा, and I was adjusting, इस एडजस्टमेंट को हम लोग रीऑर्गेनाइजेशन कहते हैं आर्मी में. तो I was adjusting my troops to hold that area जो हमने कैप्चर किया था. So नवीन को मैंने बोला कि नवीन, why you go to flat top, take a section and stay there at flat top. So Naveen took his section and he deployed his section there रात में.
एक दूसरा सेक्शन जो था मेरा, वो मैंने एक जेसीओ के अंडर आई पुट इट एट 4875 टॉप, और कंपनी हेडक्वार्टर को दोनों के बीच में। सो इट इज लाइक ये फ्लैट टॉप, ये 4875 टॉप, बीच में कंपनी हेडक्वार्टर ऐसे। और रात की बात थी, रात को हमें मालूम नहीं था कि लेज भी है, वो हमको बाद में पता लगा। रात भर वो लोग, दी पाकिस्तानीज और दी एनिमी, आई विल नॉट यूज दी वर्ड पाकिस्तानीज बट आई विल यूज एनिमी, दे केप्ट shouting from there and Allah Akbar and all that, हल्ला करने लगे। तो नवीन और उसकी जो सेक्शन थी, उनको लगा कि हमारे ऊपर काउंटर अटैक करने वाले हैं। सो नवीन कॉल्ड मी अप एट नाइट। इन द मीन टाइम मेरे साथ मेरी कंपनी हेडक्वार्टर में डेल्टा कंपनी कर्नल विकास वोरा, हु इज कमांडिंग, एंड his company 2IC, Vikram Batra, they were both with me in my headquarter. They had come, तो वो भी सुन रहे थे क्या हो रहा है। सो वो नवीन ने मेरे को बोला कि सर यहाँ मुझे लग रहा है कि काउंटर अटैक करने वाले हैं, एंड माई स्ट्रेंथ इज एडिक्वेटली लेस, सो मुझे थोड़ा सा बीफ अप कीजिए आप मेरी स्ट्रेंथ को, बिकॉज उनकी आवाजों से लग रहा है कि वो काफी भारी तादाद में है वहां पे। सो वी डिस्कस्ड, माई सेल्फ, कर्नल वोरा, हम लोग सब वहां बैठ के डिस्कस कर रहे थे। सो मैंने कर्नल वोरा को बोला, मैंने कहा सर मेरे पास तो स्ट्रेंथ बची नहीं है, आई कैन नॉट स्पेयर एनीवन फ्रॉम एनीवेयर, तो आप अपना 15 या 20 जवान आपकी कंपनी के आप दे दीजिए, आई विल गो अहेड एंड पुट दीज गाइज विद हिम, एंड देन मैं वापस आ जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, बिकॉज मैंने तो देखा था, वो पूरा एरिया देख रखा था, तो आई न्यू द रूट। सो मैं ले जाता हूं और मैं वहां जाकर के इनको डिप्लॉय करके देन आई विल बी बैक। तो कर्नल वोरा सेड कि ठीक है, ही इशूड इंस्ट्रक्शंस टू हिज जेसीओ और समबडी कि ठीक है तैयार करो 20 बंदे, साहब के साथ जाएंगे। इन द मीन टाइम विक्रम एट दैट टाइम, पता नहीं उसकी क्या सूझी, वी वर एट अ वेरी गुड, मतलब मैं और विक्रम वर वेरी वेरी क्लोज, डिस्पाइट फ्रॉम आवर सुपर डेज, फ्रॉम आवर अर्लियर डेज in CI. So he said कि सर आपने अभी अटैक किया, आप थके हो गए, आप रिलैक्स करो, ये 20 बंदे मैं ले जाता हूँ, मेरी कंपनी के हैं, मैं अपने प्लटून के ले जाऊंगा, एंड आई विल गो एंड डिप्लॉय देम देयर। तो ऐसे ठीक है तू चला जा लेकर के, एंड यू कैन टेक देम। मुझे क्या पता था आगे लेज है, कुछ पता ही नहीं था, हमें तो लगा कि वो काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो तो बाद में पता लगा, अगले दिन सुबह जब देखा तब पता लगा लेज है। सो विक्रम सेड ठीक है, मैं आई सेड ओके, यू टेक देम, डिप्लॉय देम एंड कम बैक। उसके साथ मैंने अपना एक जवान भी भेज दिया कि यार तू रास्ता दिखा देना, विच इज द रूट। सो ये विक्रम अपना पार्टी को ले गया और उसने वहां अपनी पार्टी को डिप्लॉय किया। दिस इज अराउंड आई वुड से 7:30 8 o'clock एट नाइट, अंधेरा हो गया था। So he deployed and then he called me on the set, Vikram, radio set, कंपनी का रेडियो सेट। ही सेड कि सर मैंने डिप्लॉय कर दिए हैं, और मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों आऊं वहां पे, मैं भी यहीं रुक जाता हूं, ये नवीन है, नवीन के साथ आई विल गिव हिम कंपनी, आई विल गिव हिम सपोर्ट, एंड मैं आपका बंदा भेज रहा हूं और साथ में 2 बंदे अपने भेज रहा हूं, आप प्लीज मेरा ना स्लीपिंग बैग भेज दीजिएगा इनके हाथ में। सो आई सेड ठीक है, वो आ गया, बंदे आ गए, उसका स्लीपिंग बैग हमने भेज दिया। रात ऐसे निकल गई, हम लोग, मैं और कर्नल वोरा वो कंपनी हेडक्वार्टर्स, ऑफ कोर्स सोए तो क्या हम, लेकिन बट रात को वी जस्ट रेस्टेड अ बिट, और रात को हम रिपोर्ट लेते रहे, ऑल वाज फाइन, एंड अराउंड 5:36 in the morning we heard a big blast, वो फ्लैट टॉप के ऊपर। तो हमने फटाफट सेट लगाया, सेट रेडियो सेट पे बात किया, क्या हो गया क्या हो गया। देन somebody came from top and he said कि साहब उधर एक ग्रेनेड एनिमी ने फेंका है संगड़ के अंदर, वो ग्रेनेड फट गया
और नवीन साहब इंजर हो गए हैं, बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए। सो मैंने बोला कि अच्छा कहाँ है, वेयर इज ही? कहते साहब हम अभी ला रहे हैं उनको, ही इज कमिंग। बत्रा साहब ने उनको इवैक्यूएट कर दिया है। तो सो विक्रम हैड प्रोबेबली उसने जो इनिशियल जो पट्टी वट्टी बांधते हैं, बट वो काफी बैडली डैमेज था, उसके दोनों पैरों के बीच में ग्रेनेड फटा था, एंड बोथ हिज लेग्स वर ऑलमोस्ट सीवियर, Gone. जस्ट हैंगिंग, गॉन, ऑलमोस्ट कट गए थे। सो वो पट्टी वट्टी बांध के उसने वो दोनों जो छोटे जो नीचे के पैर बचे होते हैं वो उसके साथ बांध रखे थे, और वो उसको बंदों के हाथ नीचे भेजा, वेयर कंपनी हेडक्वार्टर वाज। दैट इज वेयर व्हेन आई केम टू नो, आई कॉल्ड द अपना हेडक्वार्टर, इन्फॉर्मिंग देम, मतलब जो सर बाय दैट टाइम हैड कम टू द लोकेशन ऑफ अल्फा कंपनी। जो दूसरी कंपनी थी जो स्टॉल्ड हो रखी थी वो वहीं थी, वहां पे पहुंच गए थे उनके हेडक्वार्टर, जस्ट अबाउट आई वुड से 150 to 200 मीटर्स बिलो अस। सो उन्होंने बोला कि मैं अभी आरएमओ को भेज रहा हूँ। तो ऊपर से नवीन आया, और इधर से अडाउ, राजेश अडाउ, ही रीच्ड, एंड अडाउ सॉ उसको देखा, उसका फर्स्ट एड जो भी he could do, he did morphine and all he gave, because evidently Naveen was in tremendous pain. So he was given morphine, quite a bit of morphine. Then I think if I remember correctly, there was a guy called Dalbir of Delta Company. उसने नवीन को piggyback, he brought him all the way on his shoulders from top to down, ADS, जो हमारा एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन होता है जिसको बोलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली सिंस इट वाज मेजर दिस थिंग, दे कुड नॉट हैव कैरिड आउट एन ऑपरेशन देयर, सो दे इमीडिएटली एयर इवैक्यूएटेड नवीन टू दिल्ली। उस टाइम पे आर्मी हॉस्पिटल होता था, देयर वाज नो आर्मी हॉस्पिटल, आरएनआर, रिसर्च एंड रेफरल, so it was army hospital, so he was evacuated to army hospital. Later on I met Naveen there in the army hospital when we de-inducted. So ये सब हुआ as far as Naveen is concerned. तो ये सब जो हमने evacuate कर दिया, and then myself and Karan Vora we said कि यार चलो देखें तो है क्या। Then we went up, then we found out, then we of course flat top पे तो नहीं पहुंच सकते थे, but we went to 4875 top, और वहीं से जहां से हम देख सकते थे we try and observe. तो हमें ये लगा, हमें that time we came to know that there is a entire ledge which is there, which is being occupied by them, and वो एक के बाद एक के पीछे एक संगढ़ थे वहां पे उन्होंने बना रखे, which we call echelons. So in echelons they had these sangars. So अब now we realized कि भाई now तो this is the case. So then we had a word, we spoke to General Joshi also, and we said कि सर ये है, and this will have to be cleared. So बड़ा प्रॉब्लम था, because वो जो पीछे का एरिया क्लियर करना था जिसको कि दीपक नोज एज ट्विन बम, वो ट्विन बम के एरिया में नागा, टू नागा वाज ऑलरेडी, इट हैड ऑलरेडी मूव्ड अप फ्रॉम नीचे नाले से, वो मूव कर रही थी टू कैप्चर दैट रेयर. सो देन देयर वाज अ बिग इशू के यार वो हमारा आपस में ना कहीं हो जाए क्लैश. So what to do, and then they were shouting and they were trying to intimidate us, these enemy. So then we decided that अभी ये बात चल ही रही थी हमारी आपस में. This is I think morning 7:30 maximum. So Vikram ne, then he called me on the set. He said कि sir these guys are there, but ये तो रास्ता तो नहीं है, straight रास्ता तो नहीं है बिल्कुल. Because if one of my videos, Deepak has seen the videos, that ledge is a very very narrow ledge, so to say. दोनों साइड पे बिल्कुल डीप वो है ड्रॉप्स. So he said कि सर ये इसको we'll have to recce another route. तो वो डिस्कशन हुआ, he asked me permission for taking a little bit of this thing and going for recce.
कि सर मैं दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ जहां से हम अटैक कर सकते हैं। अब हम लोग ये सोच ही रहे थे, हम डिसाइड ही कर रहे थे कि कैसे अटैक किया जाए, किस तरीके से किया जाए। माई सेल्फ, कर्नल वोरा, बिकॉज फ्रंटल अटैक करेंगे, बिल्कुल सामने से करेंगे तो हम खुद ही मारे जाएंगे एंड ऑल दैट। तो वो बोलता है सर मैं जाके देख के आता हूँ। तो जब हम ये डिसाइड कर रहे थे तो आपस में डिस्कस करके वी सेड कि चलो। सो फिर जब उसने मेरे से ये बात की थी दैट आई वांट टू गो देयर, देन आई टोल्ड हिम दैट ओके बी केयरफुल, डोंट गो अलोन, टेक समबडी विद यू, बट बी केयरफुल, देयर इज नो, हम we'll manage some of the, I told him कि ध्यान रख। So he had gone and he went. अब ये जो एपिसोड है ये तो वही जानते हैं जो उसके साथ गए थे एक्चुअली, व्हाट रूट दे टुक। बाद में उन्होंने मुझे बताया, रघुनाथ एंड द अदर गाय, वो दे टुक अ रूट डाउन इनटू द नाला एंड क्लाइम्ड अप, एंड व्हेन दे क्लाइम्ड अप they also probably would not have realized कि हम कहाँ पहुंच गए हैं और हम कैसे पहुंच रहे हैं। But Vikram suddenly, once he reached on top, he realized कि he has come behind the enemy संगठ, जो हमारे को परेशान कर रहा था, जहां से आवाजें आ रही थी कि हम अटैक कर रहे हैं और वो अल्लाह अकबर एंड ऑल दैट। तो ही बात तो करने का मौका ही नहीं था, उसने सीधा ही अटैक कर दिया उस पर, उस संगठ पे। And he fired at these guys. He killed 4 or 5 of those inside in that Sangad. And वो करके वो, the moment he was about to enter into that Sangad, that is the time वो पीछे वाला उसके एक और पीछे से, like I said कि वो एक के बाद एक संगड थे उनके, which he did not realize, वो दिख तो रहे नहीं थे। So he did not realize at that time कि इसके पीछे भी और हैं। He thought कि यही खत्म है, ये मैं कैप्चर कर लूंगा तो काम खत्म हो जाएगा। So I'll give a foothold to my battalion and we'll be able to capture the entire place. वो जब वो करके वो संगड़ में जाने लगा था, that is the time when the enemy fired. There is a sniper, उसका वहां से स्नाइपर ने मारा, स्नाइपर शॉट मारा उसने. With that single shot, it hit him in the heart and he died there itself. और उसके बाद फिर एक उन्होंने आरपीजी भी फायर किया उसके ऊपर, which probably burst close to him and he got injured because of that also. But he sacrificed his life at that place, and then it became a little bit of a problem for everybody to retrieve his mortal remains. So वो एक एपिसोड, और फिर उसके बाद हमने भी काफी फायर करते रहे, काफी उसको सपोर्ट देते रहे फायर करके from 4875 top to retrieve his this thing back. So wo Raghunath and that NCO, they brought his mortal remains back, and then I was the first one to reach when it was brought to Flat Top itself. So खैर मेरे को तो खैर I felt very bad at that time because I was very close to him. I was pretty close to Vikram. So पता नहीं, थोड़ी देर के बाद I checked his pockets, तो उसकी पॉकेट से मेरे को, I told दीपक this that उसकी पॉकेट से मेरे को गायत्री मंत्र मिला था and 1 or 2 more things. So this is how he laid down his life for the nation. और जब ये हो गया then फिर हम the entire battalion, 2 कंपनियां थी वहां पे, नुकसान तो दोनों कंपनियों को हो गया था। चार्ली कंपनी का एक ऑफिसर गॉट इंजर्ड, डेल्टा कंपनी का एक ऑफिसर शहीद हो गया। तो फिर बंदों ने बोला कि साहब अब नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल रिमूव ऑल ऑफ देम। सो देन देयर वाज अ असॉल्ट प्लान्ड विद, एंड इट वाज अ ब्रॉड डे लाइट असॉल्ट, मतलब दोपहर में हुआ, 12, 12:30, 1 बजे करीब स्ट्रेट। सो एक सेक्शन मेरी कंपनी का था, उसमें चार्ली का एक सेक्शन डेल्टा का था। दे स्ट्रेट अवे असॉल्टेड ऑन द लेज, मतलब वो उन्होंने परवाह नहीं की, फिर बोला मरेंगे या मारेंगे, और एक साथ लगातार लाइन से दे केप्ट क्लियरिंग एंड दे क्लियर्ड टिल अबाउट
अगर दीपक तूने वो वाला वीडियो देखा है ना, जो लेटेस्ट वाला वीडियो मैंने दिखाया था वहां पे, जो पिछले साल वाला, इन विच हाँ देयर हाँ आर सर, चॉपर्स लैंडिंग एट दैट प्लेस, यस यस, ठीक है, जिस जो चॉपर्स हम लोग को ड्रॉप कर रहे थे जिस लोकेशन में, सो दैट इज द प्लेस टिल वेयर दे केप्ट पुशिंग। और बीच में एक एडम एरिया था, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जो दिखता भी है वो फोटोग्राफ्स में। सो दे क्लियर्ड ऑल दिस एंड टिल दैट प्लेस दे kept running, kept going, मतलब almost about 32 people were killed in this entire 4875 operation. And उसके बाद फिर of course that operation was led by Colonel Vora. So जब वो पहुंच गए वहां पे, then they could see twin bump में पाकिस्तानी जो हैं, जो एनिमी है, वो उनमें थोड़ा हलचल हो गया है, एकदम से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सो देन कर्नल वोरा स्पोक टू अपना कर्नल जोशी, दैट टाइम कर्नल जोशी, नाउ जनरल जोशी, ऑन द सेट के सर हमको और आगे जाने की परमिशन दीजिए, हम पूरा ही क्लियर कर देंगे। वी कैन सी देम स्केर्ड एंड वी कैन सी देम रनिंग, जस्ट हमारे बंदे भी जोश में जाने दीजिए। But since, and probably I think General Joshi would have spoken to higher ups also, but since 2 Naga was coming for that twin bomb, so they said कि नहीं आप लोग आगे मत जाइए, because नहीं तो fratricide हो जाएगा, अपने ही बंदों को आप blue on blue हो जाएगा। So we halted there and then 2 Naga came and then they captured this twin bomb area, पीछे का, जो उनका probably company headquarter था। So this is how the entire operation went, और this is how it happened. अभी तो आसान लगता है बताना, लेकिन या बोल दीपक। Sorry to interrupt sir, वो अगर if you can tell श्याम सिंह का जो मतलब जो how he came in the picture sir, अगर वो थोड़ा बता दो, because it's very, उनका बहुत कम सुना है हमने। Yes. हाँ, मैं मेरे ब्लॉग में पढ़ लेना आप तो। सर अभी लिख रहा मतलब हूँ। I have started. I have written 2 blogs as of now. I have not shared with anyone. Let me write some more, then I'll share. Okay. So Sham was actually he was my buddy. So a buddy is one who actually looks after you throughout. मतलब वो आपका right from going with you out for operations to looking after कि आपको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो that is what a buddy is. So he was my buddy when I was in CI Ops in the valley. So Sham was basically supposed to be behind me. A buddy is supposed to be with you. He is not supposed to go away from you. आप buddy pair में काम होते हैं। तो Sham was supposed to be with me. But जब हम ऊपर चढ़ रहे थे, तो जो रास्ता है वो आगे जाकर के आफ्टर अबाउट से 1 kilometer or so, that route was to bifurcate. So Charlie company was supposed to go left, Alpha company was supposed to go right. So जहां से वो bifurcate होना था, we called it as Y junction. Sir, this is in 407. Deepak, we saw that बर्फ का yes, मैंने बताया था दीदी आपको। नहीं, उसके नीचे है थोड़ा, उसके नीचे है वो जो बर्फ का आपको वाई दिखता है ना, बर्फ का नीचे, हाँ, वो उसके थोड़ा नीचे है। So that Y junction is supposed to be where we were supposed to bifurcate both the companies. Alpha company under Bhaskar sir was supposed to go right and I was supposed to carry on straight. लेकिन क्योंकि मैंने रेकी नहीं की थी on first, because birthday था मेरा, so I had requested, I have to, so all that I had done an aerial recce later on, but वो aerial recce में वो ground recce की तो बात नहीं होती। so भास्कर सर ने की थी, तो भास्कर सर को मैंने रिक्वेस्ट किया था चलने से पहले, मैंने कहा सर वो जहां से बाइफरकेट होना है हमारी कंपनी में से किसी ने नहीं देखा है, आप लोगों ने देखा है। सो जहां से बाइफरकेट होना है, ऐसा ना हो कि हम आगे पीछे 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 चलते चले जाएं, बिकॉज अल्फा कंपनी वाज लीडिंग व्हेन इट वाज मूविंग फ्रॉम बेस। तो ही सेड ठीक है, यू गिव मी अ गाय, और जो बंदा मेरे साथ चलेगा, जहां वाई जंक्शन आएगा उस बंदे को मैं वहां खड़ा कर दूंगा और वो चेक करता जाएगा, जब तुम्हारी कंपनी स्टार्ट होगी
हमारे पीछे, वो उनको लेकर के उधर हाँ? लेफ्ट साइड की तरफ ले जाएगा। क्यों अच्छा है? सो मेरे को और कोई मिला नहीं, तो मैंने श्याम को बोला, मैंने कहा श्याम तू एक काम कर, तू चला जा साहब के साथ आगे आगे, और वाई जंक्शन के ऊपर जाकर के तू उधर रुक जाना, और अपनी जो लीडिंग सेक्शन है उसको उस तरफ मुंह करके, और तू फिर वापस मेरे पास मिल जाना। सो आई टोल्ड हिम दिस एंड ही सेड ठीक है साहब। तो ही वेंट अहेड। वाई जंक्शन पे उसने कंपनी को लेफ्ट कर दिया, बट ही joined the leading section. ओहो। He was supposed to come to me and be behind me, but वो है कि जिसने अपना शौर वैलर दिखाना है वो दिखाएगा ही। So he somehow went, और मैंने भी फिर पूछा एक आध बार, नहीं है वो, कहते साहब वो तो आगे साथ में ही चला गया उनके। चलो ठीक है, मिल जाएगा ऊपर। So that is how he came ahead and he went in the initial assault that happened. He was not supposed to. So वो फिर मैंने दीपक को अलग से भेजा भी है how it happened, and he actually died in front of my eyes, right in front of me. So that is one episode which I can never forget. वो मेरी जिंदगी में कभी मेरे दिमाग से उतर नहीं सकता, चाहे कितने साल हो जाए। I cannot forget that Shyam dying in my arms. I cannot forget it. So every time I think about it, it really pains me a lot. और मैं कई बार सोचता हूँ कि काश मैंने उसको ना भेजा होता तो आज वो यहीं होता। Because a buddy is with you 24/7. He is like, हमारे आर्मी में बोलते हैं कि second wife है। A buddy is your second wife. He knows everything about you. What your choices are, what your likes are, आप कब जाना चाहते हो, कब निकलना चाहते हो, आपको क्या चाहिए, कब चाय पीनी है, कब क्या करना है, कब आपका मन कर रहा है। तो they know you because they are throughout with you. So that is one episode which is, I am very very senti about it, and of course जो भी है उसके घर वालों को मैं कभी आंख नहीं दिखा पाया उसके बाद। I have never been able to, because I cannot face them. I have not been able to face his family. तो वो एक एपिसोड है जो मैंने लिखा भी है दीपक की बुक के लिए, and I'll write it in my blog also, exactly how it happened. But that is how Shyam was not there, and that is how we lost him. But we lost him in a manner that he was the one who was actually trying to support Sanjay and everybody to come to the संगड़। जो एक फ्लैट टॉप का संगड़ हमारे को परेशान कर रहा था, वो अगर आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी, इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग थिंग। अगर नहीं है तो आई विल रिक्वेस्ट दीपक टू जस्ट शेयर दैट फोटोग्राफ, जिसमें वो हम लोग बैठे हैं, वो फ्लैग वाला जो है ना, मी, अडाऊ एंड चैटर्जी। सो यू कैन शेयर दैट एंड Sir, the person who is calling you is requesting me to request you to take the call. Rupam, my cadet. Yeah, Rupam. Thank you so much. मैं अभी I am speaking to members of the देश। तो तू वहां बाहर ही खड़ा है, तेरे को अंदर नहीं आने देंगे इधर। हाँ नहीं वो, बट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग आई नो शी मस्ट हैव सेंड, बट पता नहीं, मैं देखता हूँ, आई ट्राई। अमन, अच्छा ठीक है, तू उधर रुक, मैं भेजता हूँ किसी को। लेट मी सी इफ दे परमिट यू। ओके, लेट मी सी, 1 सेकंड। अमन, एक उधर गेट पे एक कैडेट आया रूपम करके, रूपम रॉय, उसको किसी तरीके से बुला ले, अंदर ले आ, ठीक है। अगर प्रॉब्लम है तो जिप्सी ले जा, जिप्सी में ले आ बैठा के, ठीक है। वो गेट पे उनको रिक्वेस्ट कर देना, कहना कि साहब ने बुलाया, कुछ अर्जेंट है। लेट्स सी इफ दे परमिट, बट आर्मी में जनरली परमिट नहीं कर रहे आजकल, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। तो लेट मी सी, अगर नहीं होता इससे देन आई विल हैव अ वर्ड।
Yeah, I know, I can understand आपने क्या किया होगा, but it was really not required. नहीं, it's there. No, sir, not us. We just given them the time कि ज्यादा पहले मत जाके हमारा conversation disturb मत करना. So it's their initiative. We just told कि हमारा conversation थोड़ा हो जाने देके फिर जाना. So this is how things have happened, and this is exactly, I think, how Deepak has brought out in his book. If you've gone through it, अब ये स्टोरी है. एनीथिंग और एपिसोड्स बहुत हैं, छोटे छोटे किस्से बहुत हैं. सर एक रिक्वेस्ट आया था सर कि हाउ यू जॉइंड आर्मी, ये कहानी सुनाने के लिए. वो अगर मैं सुनाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे बहुत मारेगी. बट या so see, I am a second generation officer. My dad was also an army officer. He was from Emergency Commission 2, EC2 जिसको बोलते हैं, which the Emergency Commission Indian Army started after the 62 war. तो जो 62 का चाइना के साथ वॉर हुआ था, उसके बाद इमरजेंसी कमीशन स्टार्ट कर दिया था. And he was in the second batch, so EC2. So he got commissioned. My dad, he did his master's in economics from Delhi School of Economics, and he joined the army. He fought the 65 war. He was an artillery officer, a gunner officer, and he fought the 62 war in Punch sector as a gunner officer, survey officer थे उस टाइम पे वो. So मैं और I have a younger brother, हम उनके किस्से सुना करते होते थे. Of course, 67 he left the army and joined the civil services. So he was an IS officer throughout his life after that, but he always had that passion for the army. So हमें किस्से सुनाया करते थे 65 वॉर के, हम कैसे क्या किस टाइप से हमने लड़ा. So when I grew up, वो किस्से सुन के हम बड़े हो गए. And actually, frankly speaking, my brother wanted to join the army, and I was very keen to do MBA and go into the corporate world. But as luck would have it, I have joined the army and my brother is an MBA, so he is in the corporate world. So ये मतलब destiny है, and but I am very proud and I am very happy that I could carry forward the legacy of my dad. तो उस जमाने में फौज अलग होती थी, इस जमाने में फौज अलग है, but nevertheless it's an honorable profession, and I had always been proud of the fact that at least one of us is representing the forces, दोनों भाई में से. So this is how I joined, और basically motivation तो मेरे डैड से ही था, और तो कहीं से नहीं था, और तो कोई है नहीं हमारी फैमिली में in the army. So it is my dad and I, and that's how I joined. सर ये जो आपने अभी कहा ना कि आप MBA करके कॉर्पोरेट में जाने वाले थे, actually the same thing happened with second lieutenant Arun Khetarpal. Yeah. His father was an engineer in army. तो उनका मन था कि उनका एक बेटा इंजीनियर बनेगा और एक बेटा आर्मी ऑफिसर बनेगा. And Arun Khetarpal was a very good in his studies. तो उन्होंने कहा था कि you try for IIT and Mukesh will try for NDA. तो लेकिन ऐसा हुआ था कि उस साल अरुण खेतरपाल ने 2 ही एग्जाम में उन्होंने अपीयर किया था, एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने IIT क्रैक नहीं कर पाए, बट उन्होंने NDA क्रैक कर लिया था. तो उनके फादर ने कहा था कि ओके कोई बात नहीं, डोंट वेस्ट योर एकेडमिक ईयर, गो फॉर NDA एंड मुकेश विल बी एन IITian. तो मुकेश सर कहते हैं कि एक्चुअली बात तो ये हुई थी कि मैं लड़ाई में जाऊंगा और वो बैठ के मेरी कहानी सुनाएगा, उल्टा ये तो उल्टा हो गया कि अरुण चला गया और मैं यहाँ आज तुम लोगों को कहानी सुनाने के लिए बैठा हूँ.
So ये of course I was in college. We were in Bhopal at that time. So I was in college and I had a very good friend. अभी भी है वो. He's now left the army. He had left the army about 4-5 years back. Sanjay Tripathi is his name. So हम लोग साथ में तैयारी कर रहे थे MBA की, both of us. And then हम लोगों को पता नहीं किसी एक दिन भूत सवार हुआ कि ये भी देंगे, चलो. So हमने CDS का एग्जाम भर दिया दोनों ने एक साथ. तो दोनों का आ गया सेंटर वगैरह, साथ एक ही सेंटर था. तो जा करके हम दोनों ने साथ में एग्जाम दिया. तो हम लोग दे करके भूल गए कि चलो होगा होगा, अब अपनी MBA की तो तैयारी करते रहे. वो फिर हमारे को कॉल आ गया SSB का. आई गॉट अ कॉल टू इलाहाबाद, SSB इलाहाबाद, एंड ही गॉट अ कॉल टू बैंगलोर. संजय इंसिडेंटली वाज फ्रॉम इलाहाबाद. तो उसके पेरेंट्स वगैरह सब इलाहाबाद में थे. सो मैंने बोला कि ठीक है. जनरली सेम डेट्स थी, जब उसने बैंगलोर जाना था मैंने इलाहाबाद जाना था. सो मैं अपना SSB के लिए इलाहाबाद गया और मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा और देखा कि संजय जी मेरे को रिसीव करने आए हुए हैं. मुझे बड़ा गुस्सा चला. मैंने बोला यार तू वहां क्यों नहीं गया? बोला मैंने नहीं ज्वाइन करना. मैंने बोला तेरे ऐसी तैसी तू जाएगा और ये करे. उसके पेरेंट्स से मिला, उनको बोला कि ये क्या कर रहे हो आप, भेजो इसको, ये करके ना. सो ही सेड अब तो मेरी डेट निकल गई. आई सेड डोंट वरी, you go and request them कि because of some reason home ये वो, please give me another date, you just go. तो वो उसको मैंने किसी तरह से बैंगलोर की ट्रेन में बिठाया बिफोर आई वेंट फॉर माई SSB. उसको बिठा करके और उसको भेज दिया और वो बैंगलोर में सिलेक्ट हो गया, मैं इलाहाबाद में सिलेक्ट हो गया. सो वी बोथ गॉट सिलेक्टेड. तो ही ओज दैट. ही सेज कि यार अगर तू भेजता नहीं मेरे को तो मैं नहीं जाता. So we both got selected. We both became course-mates. So we both joined the academy, Indian Military Academy together. We passed out together. So ये एक किस्सा है जो था, episode. But these are all things that happen with you in life. So this is how it is. और पूछिए, anything else that you want to know? Sir, today when actually a picture is very much viral in the both in the internet and in the television media, that one of our security personnel has rescued a 3-year-old boy who came in between the firings between the militant and the counterinsurgency personnel. तो वो एक बहुत केयरिंग एक फोटो आ रहा था. तो उसमें ना संजय दादा से सुने हुए एक बात याद आ रही थी कि 13 Jackreef made a burial ground for the enemies even at the top of 4875. Yes, ये आप जरा डिटेल में बताइए सर. हुआ ऐसा था कि दैट 4875 जब कैप्चर हो गया तो उस टाइम पे थोड़ा सा माहौल इस टाइप का हो रहा था दैट डिप्लोमेटिक चैनल्स भी चल रहे थे फॉर देम टू विड्रॉ. सो थोड़ा सा लल सा आ गया था वॉर में. एंड वी टोल्ड देम दैट आप मतलब इंडिया टोल्ड देम दैट आप अपने आपके यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स हैं. बिकॉज वी ऑलवेज बिलीव, ठीक है लड़ाई हो रही है, हमारे एथोस आर्मी में ये बोलते हैं कि इवन इफ द पर्सन इज एन एनिमी ही इज स्टिल अ सोल्जर, ही इज फाइटिंग फॉर हिज कंट्री. दी एथोस में भी रॉन्ग, व्हाटएवर में भी रॉन्ग, बट उसका काम तो वो है कि वो लड़ रहा है अपने देश के लिए, जैसे हम लड़ रहे हैं. तो वो सिपाही है. सो अक्रॉस बॉर्डर फ्लैग मीट्स हुई और उनको बोला गया कि आप आपके, एंड वी केम टू नो दैट दे आर नॉट मुजाहिद्स, दे आर NLI, नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं. एग्जैक्टली. सो वी सेड कि यू प्लीज टेक योर बॉडीज, बट दे रिफ्यूज. दे सेड कि नहीं हमारे सोल्जर्स तो हैं नहीं. और ये जो हैं ये तो मुजाहिद हैं, हमारे नहीं, कश्मीर के ही मुजाहिद हैं शायद. एंड वी न्यू द ट्रूथ. सो देन इट वाज डिसाइडेड in the unit, not only in the unit but it was decided within the division. जो पूरा डिवीजन वहां पे था, तो GOC ने भी ये डिसीजन लिया कि yes, let's bury these mortal remains of the soldiers. They deserve decent burial and last rite.
वो चाहे वो उनका कंट्री उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है. सो देन अ डिसीजन वाज टेकन, लेकिन वो करें कैसे? सो ओवरनाइट फिर वहां रातों रात हमने एक हेलीपैड बनाया ऊपर ही 4875 के ऊपर. जगह नहीं है बिल्कुल भी. इट्स अ वेरी वेरी स्टीप फीचर, बट फिर भी रातों रात बंदों ने लग के उसको थोड़ा सा, इट वाज जस्ट, मतलब आप सोच लीजिए आपके डबल बेड से थोड़ा बड़ा एक हेलीपैड बनाया कि वहां कम से कम कोई टचडाउन करके कोई उतर जाए. सो बेसिकली एम था कि मौलवी वगैरह को लाएं और उनके जो नेशनल फ्लैग्स हैं वो नीचे से सिलवाए गए, पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग, बिकॉज यू हैव टू ड्रेप द बॉडी इन नेशनल फ्लैग ऑफ अ सोल्जर हु इज अपनी, जिसने अपनी जिंदगी अपनी जान दी है अपने देश के लिए. सो वो नीचे से बनवाए गए, वो आए, और फिर इसमें ये डिसाइड किया गया कि मीडिया को भी आने दिया जाए. मीडिया उस टाइम पे बड़ी फ्रेंजी में था कि नहीं हम भी जाएंगे, आप ये कर रहे हो, हमें भी जाना है. So then it was taken, decision was taken at the core level or maybe higher level that okay, take some media on top. So फिर वो हेलीकॉप्टर से मीडिया भी ऊपर आए और हाँ आ गया, ये ले जाएगा साइड पे कर. रूपम को यहीं बुलाऊं? सर वट एवर इज फाइन विथ यू, मतलब जो भी परमिशन में है. उसको बोल, आ रहे हैं 2 मिनट. हाँ बोला, मैं आ रहा हूँ. So that decision was taken, and then we brought a Maulvi from I think it was 16 Grenadiers. उसका मौलवी था who came up. और फिर हमने ग्रेव्स डिग किया. अब इन दैट ऑल्टीट्यूड वहां पे वो तो पूरा पत्थर है वहां, मतलब इट इज स्टोन. और हमारे पास क्या था डिग करने के लिए? हमारे पास तो हमारे वो छोटे छोटे बेलचे लेकर के गए हुए थे हम. When you are climbing, you are not carrying anything. So उसी से वो ग्रेव्स को डिग किया. और फिर वो मौलवी आए, मौलवी ने फिर वहां पे वो जो भी अपना सेरेमनी किया. देन वी वेरी ceremoniously we laid these mortal remains of these soldiers to rest. शायद अभी भी हैं वहां पे ग्रेव्स. they would still be existing because कोई गया तो है नहीं वहां पे उसके बाद. we were the first ones to go a year back again in that area. Yeah. So after 20 years. So Yes, I think the mortal remains are still there. But yes, this ceremony was performed, and the unit was given a lot of credit for this at that time. Yes. And still today, that is an example we always put. I mean, about the integrity and humanity of our Indian Army. Yeah, dignity of a soldier should be maintained. चाहे कुछ भी हो. We always feel proud for our soldiers. We didn't want to do what they did to Saurabh Kalia and his party. So we wanted to set an example that आप barbaric हो सकते हो, हम नहीं हो सकते. So that was another reason why we did it, and we did it. But आज तक वो मैसेज तो समझ आया नहीं. देखिए हम तो अपना काम करेंगे, अब किसी और को समझ नहीं आए तो नहीं आए. So we will do what we have to do, what is right. ये तो हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं शुरू से, जो सही है वो करो. बाकी अगर उसको नहीं समझ में आएगा तो just too bad, वो ऊपर वाला देख लेगा. But we will do what we have to do. Right? Sir, and how was it like after 20 years, like again meeting all the officers with whom you fought? Yes. और अभी Yeah, मतलब it was very very nostalgic actually. So when we met again, so it was basically it was like kind of reliving those days. तो हम लोग we went to Gumri, we went to Matayan, जहां हम बाद में कैंप किए थे, जहां we lost a guy called Nazir who was our clerk. We saw those trenches. वो trenches अभी भी खुदी हुई हैं वहां पे जो हमने खोदी थी मतायन में, कोई चेंज नहीं हुआ वहां पे. Then we went all the way to all the officers जो हम लोग उस टाइम पे थे. We went all the way to the place where we lost Ajay Jasrotia.
So it was like you can say it was like a pilgrimage for us, revisiting those places, reliving those times, and in a way, our solemn way to श्रद्धांजलि अर्पित करने का हमारा और सुना है सर, जब विशाल भैया ने वहां पे अगरबत्ती जलाया 4875 and prayed, so it was a different mahal altogether. Yeah, he did. You see, उस टाइम पे जब हम ऊपर गए थे तो हमें ये लगा था कि हमारे वो जो साथी बिछड़े साथी हैं वो यही हैं. ठीक है, it is an emotional thing, but yes, all of us, we felt that way, that those guys whom we left here, and not only Vikram, there were others also. Yes. So मेरे लिए तो श्याम भी था, मेरे लिए मेरे दो कंपनी के जवान और थे, बाकियों के लिए और जवान थे. So that particular moment was very, very somber, and we did feel a little, मतलब सब शांत हो गए थे उस टाइम पे. Actually, still they are guarding those peaks. Yes, absolutely. We believe. Yes, we believe they are. बाकी तो कोई भी है कुछ भी सोचे, बट हमें तो लगता है कि हमारे साथी तो वही हैं अभी भी. That is why I have started this blog, और उस blog का नाम है. Share it with us also. Sorry? Please share it with us also. We all will read. Deepak knows, I will share it, and I have named the blog as एक साथी और था. Oh, beautiful. So, perfect. And my aim is to bring out those guys who were part of this entire victory called Kargil, but somehow they have never been mentioned. But contribution तो उनका भी था. बिल्कुल. So this time when I went to Kargil, I realized कि 20 साल हो गए, उनके जो contributions हैं वो fade हो रहे हैं धीरे धीरे. So my aim was that I will put it in in some sort of a record, so that it remains their deeds. बात तक. Sir, can we have the detail of the family of Shyam ji? हाँ, वो आपको सब दे सकता हूँ मैं. That is not. We can contact them, and we promise you that we will be in touch with them. Okay, so what I'll do is I will give the details to Deepak, and you can collect it from him. And अगर आप by chance उधर कभी जाएं, because they are all he was from Himachal. So वो हिमाचल वाले हैं. So जब आप कभी उधर when you go that side, so yeah, why not? But मेरे में हिम्मत नहीं हुई जब मैं अपने आप को कमजोर मानता हूँ, क्योंकि मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा फिर अगर मैं जाऊंगा उधर. बट आई विल डेफिनेटली गो वन डे. ये मैंने दीपक को बोला भी है that I'll do it. सर, और एक इंसिडेंट let us start the contact and let us have some few words with them. आप in future आप पक्का चले जाना. All right, let us start it. I'll do that, no problem. हाँ दीपक. सर, और एक छोटा इंसिडेंट सर, जो बिफोर दी अटैक आपका जो कंपनी आपने बोला था 120 बंदे के हाथ खड़े हो गए थे बिफोर दी अटैक, अगर आप थोड़ा सा उसको अगर इफ यू कैन bring it. Yeah, this is something, this is actually a matter of pride for me. I mean, मतलब मैं ये बात भूलता नहीं हूँ कि I was so loved and so respected by my company at that time. तो ये हुआ ये था कि like I said कि चार्ली कंपनी was reserve, वो अभी तक कहीं गई नहीं थी, कंपनी कमांडर नहीं था उनका. So when I after 5140 capture, when I reached them and I spoke to them, so they were all demoralized. They said कि साहब बाकी सब कंपनियों को तो अटैक करने को मिल गया, बाकी सब कंपनियों को तो शाबाशी मिल रही है, हम तो सिर्फ एमुनिशन ही ढो रहे हैं, हम तो सिर्फ पोर्टर ही बने हुए हैं. These are the words. So I had promised them that next time when there is an attack, we will go.
एन असॉल्ट। तो जब वो मैं जो सर को मिला, मैंने जो सर को बोला कि सर अब अगला अटैक हमारी कंपनी करेगी, ही सेड ठीक है गुरप्रीत, आई प्रॉमिस यू इट विल बी डन। Initially was the task, you know, Deepak, was Tiger Hill. टाइगर। Okay. So we were wrecking Tiger Hill जब हमारे को रिकॉल करके बोला गया कि नहीं अभी it will be 4875. One second, sorry. So जब 4875 का टास्क मिला, so then I was told by जो सर के तू जाएगा, तू लीड करेगा असॉल्ट, तेरी कंपनी लीड करेगी असॉल्ट along with Alpha company. So be prepared. So that is the time when I went to the company, I called them, all of them. चलो सारे इकट्ठा हो जाओ, फॉलन पेप टॉक तो देना ही है कि भाई अब हम जा रहे हैं अटैक में, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ टाइप्स। So I called all of them and I spoke to them, gave them the pep talk and I told them कि देखो, you wanted this, you wanted कि we should be also part of this glory, now you're getting an opportunity. तो अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इससे कि हम ऊपर जाके कैप्चर करें। एक बार हम चल दिए स्टार्टिंग पॉइंट से तो ना तो हम लौट सकते हैं ना हम बीच में रुक सकते हैं, ठीक है। एक ही रास्ता है कि हमको जाना है और ऊपर पहुंच के कैप्चर ही करना है, देयर इज नो अदर वे आउट। सो एंड देन बाय द टाइम आई रियलाइज कि एक संगड़ है तो एक संगड़ के ऊपर पूरी कंपनी को तो मैं अटैक कराऊंगा नहीं, 100 बंदों को। सो आई सेड के आई बेसिकली रिक्वायर just one section with me who will actually physically assault and the balance company will then mop up, जिसको बोलते हैं mop up, मतलब वो जो कुछ बचे कुचे सबको कर देगी। So I said okay, I want volunteers. इतने में वो this Rajesh Adau will also vouch for this. So I said okay, I want volunteers, just 8 guys and 1 JCO or 9 guys and 1 JCO volunteers. And imagine ये किसी के लिए कितनी खुशी की बात होगी कि अगर आप किसी को बोल रहे हो कि भाई तू श्योर शॉट शायद वापस नहीं आएगा जिंदा, वॉलंटियर करना चाहता है, एंड एवरीबडी वॉलंटियर्स। सो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ प्राइड। एवरीबडी फ्रॉम द कंपनी रेज्ड हैंड्स के सर हम वॉलंटियर करेंगे आपके साथ, वी विल गो फॉर द फर्स्ट असॉल्ट। So it became a problem for me to select. So then at random I did select. Most of them जो फर्स्ट असॉल्ट में गए थे, नतिंदर, श्याम, संजय, श्याम तो खैर अलग था, प्रभात, all those they were part of my QRT in Sopore. Most of them, not all, but most of them. The JCO was not. JCO was a volunteer JCO, so he went, and 2 or 3 others were not, but बाकी सारे जो थे वो थे, and they volunteered, but I selected them, and बाकी लोग भी they were all volunteers, so everybody was willing to go, and I will not say कि वो 8 लोगों ने ही या 9 लोगों ने ही अच्छा काम किया है, बाकियों ने नहीं किया। Everybody has played his part in that. Everybody has played his part. चाहे वो you know, I Deepak, I told you about that guy who was ferrying ammunition. देवेंद्र सर, देवेंद्र नहीं, देवेंद्र तो MMG वाला था ना, दीपक दीपक कुमार, यस यस दीपक कुमार। हाँ। he was carrying ammunition boxes. I told him हमारे ammunition ही खत्म हो गया वहां पे, लड़ाई जब रात के टाइम पे जब वो काउंटर अटैक का लग रहा था, तो वी वांटेड टू सेंड द एम्यूनेशन, तो एम्यूनेशन जो भी है हमारे पास वो ऊपर भेज दो वहां पे जहां काउंटर अटैक आने का चांस है। सो हमारा एम्यूनेशन खत्म हो गया, तो आई स्पोक टू अल्फा कंपनी, भास्कर सर, एंड आई टोल्ड भास्कर सर आप अपना सिर्फ जो आपके पास 1-1, 2-2 मैगजीन हथियार के ऊपर है वो रख लो, बाकी हमारे को भेज दो, हमें चाहिए। तो उन्होंने भेजा, तो अब वो बंदे फेरी करके ला रहे थे, so they were going 200 meters down, bringing it up and taking it to flat top. उसमें से एक दीपक था, तो he was one of them who was carrying this ammunition. तो ये रात तो निकल गई, अगले दिन सुबह वो सब
किस्सा हो गया विक्रम बत्रा का. एंड देन आई वाज जस्ट गोइंग टू फ्लैट टॉप एंड देन आई सॉ दिस दीपक सिटिंग विद 2 boxes of ammunition. So I asked my senior JCO, I said, साहब ये इधर क्यों बैठा है, इसको पकड़ो, इसको उठाओ, ये इधर से गोली आएगा, फायर आएगा, इंजर हो जाएगा, इसको उठाइए यहाँ से, जल्दी उठाइए इसको, बोलिए जल्दी, अगर थक गया तो कोई बात नहीं, नीचे जाएगा कैरी करते. वो सीनियर JCO टोल्ड साहब ही इज नो मोर. वो रात में एम्युनिशन कैरी करते करते कहीं उसको गोली लगी, वो बेचारा बैठा एंड ही डाइड देयर. And his body underwent rigor mortis. वो अकड़ गई बॉडी, सर्दी तो थी वहां पे. जब उसको evacuate करना पड़ा तो we had to literally, I mean, I am sorry to say this, we had to literally break some of his bones to put him in lying position. बैठे बैठे अकड़ गई. So these are episodes. So उस बंदे की भी contribution कम नहीं है जिसने ये बिल्कुल 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 सर. किया. So that is how एक साथी और था. बिल्कुल सर. एंड यू नो सर, These are the ones who nobody knows कि उन्होंने क्या किया. But in a way their contributions are also there. वी स्ट्रांगली फील सर, जो एक वार में बच जाते हैं, रह जाते हैं, वो उन्हें बचा के रखता है, जो नहीं है उनका कहानी सुनाने के लिए, क्योंकि अदरवाइज उनका कहानी किसी तक पहुंचेंगे नहीं. सो यू ऑल लिव टू टेल अस द स्टोरी ऑफ दोज हु एक्चुअली डिडंट लिव टू टेल देयर ओन स्टोरी. And over here I would like to tell the viewers that I am in touch with sir, मतलब 2.5 साल हो गया है. 2018 Jan, I remember it was New Year's Day when I first got in touch with sir. मतलब I have spoken so many times, but सर ने कभी अपने बारे में कुछ बोला नहीं. मतलब he never told anything. मतलब वो हमेशा he'll tell me the stories of either Sham Singh, either Sanjay sir, either Natindra, either Vikram Batra, either Jasrodia sir का, but वो अभी अपने आप का कभी सर बोलते नहीं. In fact, on one of the calls I had to ask sir कि सर आपका भी बताओ, and he was just smiling. मतलब and फिर इनका तारीफ, मैंने सर का तारीफ उनके सोल्जर्स से सुना था. मतलब उनके सोल्जर्स बताते हैं कि सर राजा आदमी थे. एंड मतलब ऐसा ऑफिसर, मतलब ये नहीं हूँ. सोल्जर राजा आदमी हूँ नहीं. But like Adrija ma'am has just said that some people are alive only to give the story of others. Probably I am that. And कोई यार देखो, जिसने झेला है ना, जिसने सामने देखा है, उसको कोई ग्लोरी नहीं चाहिए. ठीक है. आई विल गिव यू अ लिंक ऑफ माय दैट ब्लॉग. उसके 2 ही मैंने ब्लॉग्स लिखे हैं अभी, बट प्रोबेबली द सेकंड ब्लॉग और द फर्स्ट ब्लॉग जो मैंने लिखा, इट इज जस्ट इट डजंट टॉक एज येट ऑफ द वॉर. वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट ब्लॉग ऑनवर्ड्स. बट वो जो मैंने लिखा है, इट विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ हाउ आई फील. ठीक है. So there is no, I mean, क्या है, हम लोग, all of us one day we have to die. ठीक है. I can't go around telling people यार मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, यार मेरी पूजा करो, मेरा कोई कर सकता है इसे? I don't think any sane man will do it. So that, and you will find all those who have actually fought or actually faced bullets in the front have always remained behind. You talk of any officer from my unit, all those who have actually faced bullets, they will always be backside. They will never talk. तू जानता है दीपक, ठीक है? None of them speak, be it Jamwal, be it anyone. They will never boast about what they have. It is very difficult to get in touch with Jamwal sir. पकड़ने ही नहीं आते हैं. अभी मैं I'll catch him up in Delhi. Don't worry. Sir, yesterday, yes, you tell us. नहीं सर नहीं एक नहीं, तो अच्छा बता दो. नहीं पहले दीपक बोल दो. अच्छा सर वो मतलब जैसे आपने यू स्पोक अबाउट जसरोटिया सर ऑल्सो, आपको तो चांस भी नहीं मिला टू सी हिम फॉर द लास्ट टाइम. यू सॉ हिम, आपने न्यूज देखा था उनका. या वो मेरे को वो सबसे बड़ा झटका लगा था अजय का. बिकॉज यू सी व्हाट अजय
was Ghatak platoon commander of the unit, and Ghataks were co-located with my company in the valley in Kashmir जहां हम थे उसके पहले. तो अजय और मैं तो साथ खाना खाते थे, साथ बैठते थे, and Ajay used to even officiate as company commander when I used to go on leave. और किसी को नहीं बोलते थे सीओ, अजय तू टेक ऑन कर ले. And during one of those periods when I was on leave, Ajay had carried out a very successful encounter in which he had eliminated 3 hardcore militants. Hardcore terrorists, मतलब foreign FMs जिसको हम बोलते हैं, foreign militants. And clean operation. He was so good. So I was all full of respect for that guy because he was thoroughly professional. चाहे young था उसमें, but since he was also a second generation officer, so उसको सब पता था, and he was a very very thorough professional. तो मुझे एक्चुअली बहुत उसके पासिंग अवे का बहुत दुख लगा, and I regretted it that I could not meet him. मैं यूनिट ज्वाइन कर रहा था after doing my JC when unit had moved into war. So कॉन्वॉय से मैं जम्मू से ट्रैवल कर रहा था टू श्रीनगर, और वहां से फिर जाना था मेरे को कारगिल थ्रू द सेकंड कॉन्वॉय. तो रास्ते में एक जगह आती है रामबन, वहां कॉन्वॉय हॉल्ट करता है फॉर लंच ब्रेक. सो आई वेंट टू द ऑफिसर्स मेस देयर, और वहां न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, लोकल न्यूज़पेपर. तो वो लोकल न्यूज़पेपर मैंने खोला, और पहले पेज के ऊपर ही नीचे ऑन द लोअर साइड आई सॉ अजय's फोटोग्राफ, एंड उसमें वो लिखा हुआ था कि 13 जैक्रिफ के ऑफिसर साहब ऐसे ऐसे शहीद हो गए, और ये इसका. तो मुझे सबसे पहला झटका तो कारगिल का वहीं लग गया. तो आई वाज एब्सोल्युटली, वो फिर पूरा रास्ता मेरे को आई कुडंट कंसंट्रेट, आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. श्रीनगर पहुंचा तो मुझे हमारा एक और ऑफिसर है संदीप तिवारी, सैंडी यू कॉल हिम. he had just joined the unit कुछ महीने पहले, so he was the youngster so to say in the unit. वो मुझे मिला ट्रांजिट कैंप श्रीनगर में. तो I asked him, Sandy, how come you here? He says, sir, I am accompanying the mortal remains of Ajay sir, and मैं यहाँ रात रुक रहा हूँ, कल सुबह. And unfortunately I could not pay my respects to even his mortal remains because they were in the aircraft at that time. So ये है एपिसोड, और मैंने बड़े देखे हैं, मतलब अच्छे अच्छे नजदीक अपने पास वाले साथ छोड़ते हुए. Sir, someone wants to know what happened to Nasir. What happened To सर वो Nasir. नजीर happened अहमद to Nasir? वो जो शेलिंग मतायन वाला जो आप बता रहे थे 25 जुलाई, जो किसका? सर वो अब्दुल नजीर Nasir सर फ्रॉम केरला. Nazir, Nazir. Yeah. That was also a very very sad incident. Nazir was a clerk, and वो हम लोग डी-इंडक्ट हो गए थे. हमारे को बोल दिया गया था कि 13 जैक्रिफ तुमने अपना सारा काम कर लिया, नाउ यू गो डाउन टू द वैली एंड गो टू योर पीस लोकेशन, यू हैव डन. एंड बाय दैट टाइम वो नेगोशिएशंस हो रही थी, एंड दे वर पुलिंग आउट, द एनिमी वाज पुलिंग आउट, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस अंडर यूएस प्रेशर एंड ऑल दैट व्हाटएवर हैपेंड. सो वी वर टोल्ड कि ठीक है, आप एक दिन जो है वो मतायन में कैंप करिए, एंड व्हीकल्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, क्योंकि हमको जाना तो गाड़ियों में पड़ता ना, गाड़ियां तो. So they were pulling in vehicles for us to move down. So हम मतायन में गए, और मतायन में हमने कैंप एस्टेब्लिश किया. लाइक आई सेड कि वो ट्रेंचेस अभी तक खुदी हुई हैं वहां पे. This time when I went, I saw, and there is a picture of me with the in that ahead of that trench. दीपक को मालूम है. तो हमने कैंप जो एस्टेब्लिश किया टेंट्स में था, उसके आसपास हमने ट्रेंचेस थोड़ी सी खोद दी कि बाय चांस, क्योंकि उस टाइम पे तो आरटी शेलिंग का खतरा रहता ही था. सो खोद दी कुछ हमने, एंड वी ईयर मार्क के भाई इसमें कौन जाएगा, कैसे जाएगा, क्या होगा अगर हुआ तो.
Next day morning, I don't remember the date exactly, but probably this was somewhere around 10th or 11th or 12th, something around this. Matayan was enemy का registered target. They had already registered it. जब शुरू में in the same place, the div headquarters moved to the same place, and they had started shelling. 4875 was directing this shelling. जो 4875 के ऊपर उनका ओपी था वो ये डायरेक्ट कर रहा था, तो डिव हेडक्वार्टर को वहां से रातों रात भागना पड़ा था. But they had registered this area, so suddenly they started shelling, they started firing. डायरेक्ट नहीं, एट रैंडम, इधर उधर इधर उधर फायर. हम लोग गोले गिरने लग गए कैंप के ऊपर, तो हम लोग इधर उधर भागे, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग वेंट अक्रॉस टुवर्ड्स द हिल्स. अगर बताएं आप लोगों ने देखा है तो यू नो दैट देयर इज अ लंबा रोड है मतायन, और लेफ्ट साइड में मिडो है, तो वो हम लोग वो मिडो के क्रॉस उधर भाग गए काफी सारे. एंड कुछ लोग जो थे वो इसमें जंप कर गए इन द ट्रेंचेस. नजीर वाज वन ऑफ देम. यंग गाय, जस्ट केम, नॉट सीन वॉर, नॉट सीन बैटल, हेलमेट लगाया, वो तो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन थे, और वो कूद गया. सो आर्टिलरी शेल गिरा बीच कैंप के, जहां कैंप बनाया था, और वो फट गया. उसके बाद नजीर, दिस इज आई विटनेस, मैं तो था नहीं बट आई विटनेस अकाउंट है ये, जो उसके साथ ट्रेंच में था वो बताता है कि नजीर जस्ट गॉट अप एंड ट्राइड टू सी के कहां गिरा है शेल. जस्ट देन अनदर शेल लैंडेड देयर, एंड उसका एक पूरा स्प्लिंटर शेल का, इट हिट हिम इन द हेलमेट, इट स्लाइस द हेलमेट. मतलब आप सोचो कितना खतरनाक था, वो हेलमेट के समेत उसका सिर स्लाइस कर दिया उसने, दैट स्प्लिंटर, एंड ही लॉस्ट हिज लाइफ देयर, नजीर. सो दिस इज अनदर वेरी सैड, बिकॉज उसका बेचारे का कोई मतलब उसका तो लड़ाई से भी कुछ लेना देना नहीं था, वो तो आया ही, मतलब ये लेटर ऑन वी यूज्ड टू से कि वो बेचारा मरने ही आया था. क्यों मरने आया? We could have delayed it by a day or two and he would have been safe. ऐसे बड़े सारे एपिसोड्स हैं वैसे हमारे यूनिट में. देयर इज दैट वो राकेश वाला एपिसोड है जो शादी करके आया था, यू नो दीपक. एंड देयर वाज अ फोटोग्राफ इन इंडिया टुडे एट दैट टाइम व्हेन हिज वाइफ, 8-year long girlfriend, he was on leave when Kargil happened, this guy married her and छुट्टी खत्म हो गया, so he rejoined back the unit. Unit was in Kargil at that time, and 5-1 hump जो अल्फा कंपनी का ऑपरेशन है, भास्कर सर का ऑपरेशन है, हम्प एंड रॉकी नॉप का, वो ऑपरेशन जा रहा था. इट वाज अबाउट टू लॉन्च, सो ही स्पोक टू दी कंपनी कमांडर भास्कर सर कि सर मैं तो अभी आया हूँ, मेरी तो अभी शादी हुई है, तो आप मेरे को कोई एतराज नहीं है, मैं चल सकता हूँ, बट मेरे को एक वादा आप करिएगा सर कि वहां से अगर वापस आएंगे तो मुझे छुट्टी दोबारा भेज दीजिएगा. तो भास्कर सर को भी लगा कि यार नहीं यार, बेचारा अभी शादी करके आया है, क्यों ले जाना है, छोड़ो उसको, नीचे रख. तो इसे बेटा तू नीचे रह, मेस में जा, मेस में तब तक मदद कर. और मेस का एक उन्होंने बंदा ले लिया, मेस में जो हेल्प करता था, वो कंपनी यूनिट के ही होते हैं, कंपनी के होते हैं, वो उन्होंने ले लिया. इसको बोला तू वहां. एज लक वुड हैव इट, बिफोर द ऑपरेशन वाज टू लॉन्च, दैट मेस गाय गॉट इंजर्ड. वो कहीं शेल गिरा, कहीं स्प्लिंटर लगा उसके हाथ में, कहीं पे स्प्लिंटर लगा, दैट गाय गॉट इंजर्ड. सो भास्कर सर वाज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन टू बस टू सेंड हिम टू द हॉस्पिटल एंड कॉल दिस गाय राकेश. उसको बोला कि तू बच्चे पीछे रहना, तू बस चल ले, अब हमारे को नफरी चाहिए, चल. Oh, that guy, he went there and, in the artillery shelling and everything, he lost his life, sacrificed his life. 3 days married to his 8-year-old sweetheart. When his body was, or mortal remains were sent to his home, which they reached,
The girl in full bridal wear gave kandha to his arthi, and that picture came in India Today. अभी भी है, शायद यूनिट में रखी हुई है वो अभी भी. So ऐसे बड़े एपिसोड्स हैं. There was one guy from the unit, वो उसको बुलेट इंजरी हुआ, entered from here and exited from behind. बुलेट, वो ठीक ठाक. वो बोला कि साहब मेरे को चोट लगा है, मैंने को जाना है नीचे. एडीएस ऊपर की बात कर रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रही है वहां से. तो वो पैदल 6 घंटे चल के आया विद अ बुलेट थ्रू एंड थ्रू हिज हेड. 6 घंटे चल के वापस आया, सीधा डॉक्टर के पास जाके नीचे बेस पे रिपोर्ट किया. बोला डॉक्टर साहब मुझे चोट लगा है. डॉक्टर साहब हंसता है, बोला पागल तू ऊपर से चल के आया 6 घंटे, क्या चोट लगा है तेरे को. उसने अपना हेलमेट उतारा तो डॉक्टर घबरा गया, बोलता तू जिंदा कैसे है. इट मिस्ड हिज वाइटल ऑर्गन्स बाय मिलीमीटर्स. तो आपकी आवाज नहीं आ रही. देयर इज हाँ मेरी आवाज. वो स्काल और ब्रेन के बीच में नैरो जो स्पेस है उसमें से निकल गया. वो इट पास एंड ही इज अलाइव. संजय हैज गॉट 2 बुलेट्स. संजय को 2 बुलेट लगी हैं, 2 या 3. तो so these are all things that have happened. These are all stories which hopefully will form part of my blog. It will take some time. It will take about 4-5 months to complete it, but I will do it. No sir, अच्छा चीज, good things takes time. It's okay. We'll wait. It will be done. So और बोलो. हाँ दीपक, any other queries you got? Sir, बहुत time मेरे देता को तू, बहुत है तू. मेरे को तो पता है सर, मगर पीपल के लिए मतलब मैम के भी जो एंशियस मोमेंट्स हुए थे ड्यूरिंग द वॉर, वन वेरी एंशियस मोमेंट which I've even written in my book. That you have written in your book. Yes, but if you would like to so share that. 1st July was my birthday like today. So like I told you, 1st July I requested CEO के सर मेरे को बात करनी है, and I told my wife कि यार वो मेरा नंबर है, अब मैं जा रहा हूँ अटैक पे. So she was aware that I am leading the assault, and they were all like everybody was glued to the TV. What is happening? And we captured 4875, but you know Vikram, Yes. he sacrificed his life there. तो टीवी में आ रहा था उस टाइम पे, which she narrates कि ये actually हुआ. She is one who's told me. तो टीवी ये तो देख रहे थे, तो टीवी पे चल रहा था कि 13 जैक रिफ ने ये 1 second रूपम 13 जैकरिफ ने असॉल्ट करके ये कैप्चर कर लिया है और सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, लेकिन उनका एक ऑफिसर इस दौरान शहीद हो गया. अब ये न्यूज में आया एंड इनके घर की लाइट चली गई. घर में लाइट चली गई एंड इनके यहां तो हो गया भैया, ऑफिसर तो एक ही गया था, तो वो हो गया शहीद. So I remember she was in Ambala at that time with her parents. So light वहां तकरीबन 1 घंटा नहीं आई, 1.5 घंटा. She says that 1.5 hours I didn't know what to do, from whom to find out कि क्या हुआ है. She kept running from pillar to post, kept praying and all that. Imagine her plight when she doesn't know husband है उनका या नहीं है. That is the longest time span in her life, I think. It is the most difficult time of my life. It is more difficult than even giving birth to a child and going through labor. वो period. So she says के बाद में 1 घंटे के बाद आई, हमने लोगों से पूछा, उन्होंने बोला नहीं वो नहीं है, विक्रम बत्रा. And she says very guiltily, she says कि I was feeling very guilty. 1 second. इनको मना करना पड़ेगा लोगों को, अभी सब देख रहे होंगे शायद. सो वेरी गिल्टीली शी सेड कि आई फेल्ट वेरी रिलीव्ड कि मेरा हस्बैंड तो बच गया. बट देन द सेकंड टाइम, वेरी सेकंड मोमेंट, आई फेल्ट वेरी बैड बिकॉज विक्रम के साथ वी वर क्लोज. विक्रम
Yes. Even Deepak knows, even Dimple, we had met. All of us, we had met. So she said कि हमारे घर में फिर, and Vikram had come all the way and stayed one night at our place in Ambala, at her place, my wife's place. So she says हम में से कोई खाना नहीं खा पाया for 1 or 2 days. So these things happen. Yeah, these are all stories, all in hindsight. Sir, Rupam is watching it live and he messaged me. I am not calling, sir. वो कोई और है, It's दूसरे not कैडेट. him who is telling. रूपम, हमें नहीं यार. रूपम, इधर आजा, अंदर आजा. He is seeing it, so वो Facebook में सुन रहा है, तो वहां से उसने मैसेज किया. It's not me. Yeah, no, Rupam has been telling me काफी देर से कि सर आप प्रेजेंटेशन दो. मैं ही टाल रहा था. Deepak has seen that presentation. Sir, actually, many people used to say whenever any major incident happens, like Pulwama or anything like that, Uri, that we should declare a war against Pakistan. So they should listen to these stories. अरे तू ये लेकर के आ गया. अरे यार, ये देखो ये केक लेकर के आ गया. आप लोगों ने यही बोला होगा उसको. अच्छा. Yes, sir. His plan. ये आपके स्टूडेंट्स की तरफ से. चल रूपम वहां रख दे कमेंट. Yeah, sorry, you were saying something. आप कुछ बोल रहे थे. हाँ. हाँ सर, जब भी कोई मतलब लार्ज इंसिडेंट जब भी होता है कि मेजर इंसिडेंट लाइक उरी और पुलवामा, many people are there who used to say कि we should declare a war, there should be a war against Pakistan to stop all these things, I mean at once. So they should listen to these stories that war only doesn't mean the victory and glory. We have to pay huge for this victory. Yes, we have to pay a huge price, and it's never pleasant. War is never pleasant. And in fact, मेरे blog की start ही यही है. I have started my blog with this only. War is never pleasant. And ultimately क्या होता है, वो सब यूफोरिया होता है, सब चलता है, लेकिन जिसका लॉस हो गया उसका लॉस हो जाता है. And they will never in life be able to recuperate that loss. So this is how it is. ये रूपम मेरा कैडेट है, आ गया इधर अभी बैठने के लिए. पता है सर. You have done a great job. Great. To celebrate the birthday. Yes. बारिश में, हाँ, it was raining, वो despite वो बारिश सब कुछ हुई. ये आ तो गया है, बट अभी मेरे से गालियां खाएगा कि क्यों आया है कोविड के इस माहौल में. You should not have come. Okay. But I'm grateful. सर ये गाली हम सब इसके हकदार हैं. सिर्फ रूपम शेयर कर लेंगे. सर मगर you're leaving the location in some time, तो मतलब एक बार तो अभी छोड़ दो सर उसे. सेंटी कर दिया. चलो छोड़ दिया, कोई बात नहीं. But a good guy. ये I hope to see him as an army officer shortly. Let's see. अगर इसमें लगन है. Let's see. ये ज्यादा हीरो ज्यादा बनता है. You have trained him, sir. तो yeah, no, he has participated in one of the most I would say NCC के सबसे toughest competition जो है वो उसमें इसने participate किया है. He's got awards, 2 awards. पता भाई क्या अवार्ड मिला? गवर्नर मेडल मिला एक, एंड DG-NCC कमेंडेशन कार्ड मिला है. सो छोटा मोटा नहीं है. He is good. Even the governor's medal he has got. जो वेस्ट बंगाल का गवर्नर है उसको मेडल मिला हुआ है. That's a very prestigious cadet, NCC cadet. So he has to be good. So in future he will also be here to share his stories as an army officer. Let's hope so. Keep our fingers crossed. We don't want war, but obviously army officers gathered many experience other than war also. Many experiences, many incidents. That obviously Rupam will share. Sir, actually whenever, I mean, unfortunately, some martyrs family,
used to join us in the WhatsApp group or telephonic call, we always used to pray that let it be the last family, that let it be the last call to a martyr's family. But I don't know how it will happen to our country. We have such great neighbors. आपके देश की आर्मी जो है, it is considered to be one of the best in the world. And believe you me, yes. मैंने UN में भी बाकी countries की armies के साथ I have served. Indian Army is way above. It's a class apart. We are a very professional army. There is no doubt about it. और we beat them hands down everywhere and anywhere. कोई भी आप, I have served with US, I have served with Ukrainians, I have served with the और क्या है, the Chinese, Russians, all of them. Professionalism में हमें कोई beat नहीं कर सकता. वो भी लोहा मानते हैं हमारा. So बस आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हैं. हम जब तक हैं तब तक. सर हमें आपके लिए चिंता है, हमारे लिए चिंता नहीं है सर. हमारे को तो बहुत सारे लोग बाग बोलते हैं कि what is so great, it is their job, they are getting paid for it. पागल लोग हैं सर. And we apologize for that. Ask them to do their job honestly, sir. There are how many of Yes. us that we do our job honestly. Yeah. चलिए आप, I'll send you the link. वो एक छोटा blog है वो. बिल्कुल But सर. you will get the insight into it. I'll just send you the link. और बाहर बहुत तगड़ी बारिश हो रही है. I think because of There the are rain. some network issues from Sir's end. Thank God it maybe happened because of the after heavy rain. 1 hour 40 minutes. Yeah, yes. Yes. I think because of the heavy rain. Yeah, there's Yes, a sound yes. of thunder also. दीपक till then yes. you continue. हाँ, अभी एक thunder हुआ क्या exactly. बोलूं? तो वही दीदी जैसे बता रहा था मैं, सर इज वेरी मतलब डाउन टू अर्थ, हम्बल और Absolutely. मतलब ही इज नेवर प्रेज्ड हिमसेल्फ, लाइक नेवर. अभी मैंने सुना नहीं है कि ही इज मैंने जैसे ही टोल्ड मैंने ये किया वो किया, ही इज नेवर टोल्ड दैट. And that's what वो that is the caliber of our officers. Like आपको भी He सब is पता so होगा. humble. That is proved that एक call में Anushka just asked him once to be our guest today, and वो एक बार में मान गए. We were so scared to talk to such a big officer, but the एक बार में he said yes. So that proves how humble he is. नहीं दीदी, इनको तो मैंने परेशान कर दिया था. लाइक आई यूज्ड टू कॉल हिम सो मेनी टाइम्स. कोई छोटा डाउट होता था मैं सर को लगाता था. देयर वाज नॉट इवन अ नीड टू मैसेज. आई न्यू के 4 बजे के बाद सर विल बी फ्री. आई यूज्ड टू कॉल हिम. सॉरी वो बिजली गिरी, हम डाटा सुना सर, we understood, वो सुना, फटाक से गिरा. अभी now it has come back. तो क्या मेरी चुगली कर रहा था, क्या चुगली कर रहा था मेरी, जल्दी बता. नहीं सर, चुगली नहीं कर रहा था मैं तो. आप और क्या मेरे पीछे से. सर आप बाद में फेसबुक में सुन सकते हैं. अबे मैंने जो बात करनी थी वो तो कर लिया आपके साथ. अब मैं फेसबुक में नहीं देखूंगा. आई नो व्हाट आई हैव स्पोकन. सर दीपक अच्छा कह रहा था. नहीं दीपक इज अ गुड गाय. बहुत बढ़िया है. Yes. हमने काफी एक बच्चा है, but he is working very hard. He is working great. He is a walking encyclopedia, sir. He was our tourist guide when we went to Kargil. तो सारा सर लामोचन पॉइंट से हर एक पीक को दिखा के he was. झूठ बोल रहा है ये. मेरे से फोन पे पूछ के बताता था आपको. सर अभी इसके बाद कहाँ जाना है, ये कौन सी जगह है. तू हीरो बन रहा था वहां पे, हैं दीपक. सर ऑल योर ग्रेस सर. मतलब दीदी वॉन्ट इमेजिन, सर ने मेरे को गूगल मैप्स में यूज करके, इट्स देयर इन द बुक आल्सो वो इमेजेस.
उन्होंने वो एक एक संगठ जो बता रहे थे वो 1 by 1 एक के पीछे एक एक एग्जैक्ट उन्होंने मतलब रफली वो ही डिस्टेंसेस से सर ने बना के मेरे को भेजा था। एंड मैंने आज मेरे पोस्ट में भी लिखा है दैट ही मेड अ स्केच, मतलब 4 या 5 मिनट के अंदर सारा स्केच उन्होंने बना लिया था। एंड ही इज टेलिंग मी कि दिस इज रफ, और मेरे को तो इतना बढ़िया दिख रहा था स्केच। मतलब अगर मैं मेरा Sir, नॉर्मल स्केचिंग भी गुड स्केचिंग भी करूँ तो मैं उतना नहीं कर सकता हूँ जो सर ने रफ में किया था। एंड Sir, I ही wonder एक्सप्लेन्ड द एंटायर 21 बैटल। years बाद भी how you all remember every minute, मतलब सारे seconds का हिसाब आपको याद है even after 21 years. सिर्फ फ्रीज हो गए। अब सर आएंगे तो हम जल्दी से केक कट लेंगे, केक कट हाँ। कर लेंगे। आई थिंक जल्दी से केक कट करके इसको मतलब सेशन हम खत्म कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज द रेन्स ऑफ रेन्स ऑफ हिमालय विल डिस्टर्ब अस। और ये मैम को भी एक बार मिलना चाहिए दीदी, मतलब यू शुड स्पीक टू मैम, मतलब शैली मैम है उनका नाम। वो बहुत है। और द्विजा दीदी भी फ्रीज हो गए। हाँ। Is it? हाँ, yes. Can you hear me? अच्छा। थोड़ा We can hear you, but you are freeze. नेटवर्क इतना देर तक 2 घंटा तक साथ दे दिया, यही Absolutely. काफी है। मेरे यहाँ का नेटवर्क का कोई भरोसा नहीं। पूरा देश इंतजार कर रहा है सर के आने का। True. Someone has written that Colonel Lalit Rai sir was also मिलिंद वागले Yes, सर है, yes. मिलिंद वागले सर ने लिखा है। मिलिंद वागले सर ने लिखा है। And Sanish had asked the question about Nazir because he is also from Kerala. So I think Sanish had heard about him before. So that's why he asked this question. He had just joined the unit दीदी, जैसे सर ने बोला आई थिंक 2-3 दिन ही हुआ था उनको। बिल्कुल। And after the unit had got out, in fact sir has also told me a story कि इनका ये they got a TV from BPL, जो BPL कंपनी थी उस टाइम, फेमस टीवी कंपनी, so all the units got a TV. So the unit thought that हम देखेंगे, हमारी न्यूज देखेंगे विक्ट्री का उस टीवी पे, but due to that shelling the TV also was damaged. And they did not get a chance, and in fact sir went to the BPL office in Delhi to return, but now I think now that TV is with the unit and it is like मतलब उसको सजा के रखा है उन्होंने म्यूजियम में। हाँ। Deepak, can you call sir कि whether just check. हाँ check he will be able to, because अगर power cut हुआ है तो sir won't be able to connect. घंटाई ओठो। At the end of the session, it is very unfortunate for us that we have lost the connection with Gurpreet sir. So let us wait for a few minutes as long as Deepak can get in touch with him. Didi, hello. Yes. Yes. Yes, Deepak. Yes, Deepak. Didi, can you hear me? Yes, yes. Perfect. Yes, we can hear. Yes, yes. Perfect. Yes, we can.
First phone is busy दीदी, busy आ रहा है थोड़ा. अच्छा ठीक है, we'll wait for 2 minutes. ठीक है, we'll wait for 2 minutes. We can share We with can share with Sanjay Dada Sanjay today Dada today Yes, yes. He will that see. we He have checks spoken to our. his company commander. Yes, yes. Let us wait for 2 more minutes. Deepak, Deepak, Yes दीदी, can't hear you. hello. I can hear. I can hear. Deepak, is it okay? Deepak, is it okay? दीपक, अंधेरे से निकलो. अंधेरे से निकलो. Hello. हाँ. Yes, Deepak, can you tell us that what was the Yeah inspiration दीदी, yes yes. to what was the inspiration to write these books on Kargil and Sher Shah? Sher Shah. Hello. Can you hear me, Can Deepak? you hear me, Deepak? I think there's an issue with mine. You just can go hear out you. and Go again out click and the link. click the link. Should I leave the video? No, again log in again. Log in again. Actually, thanks to Deepak for connecting us to Gary sir. Absolutely. My camera was attacked by someone. Oh, who is here? Deepak. Acha, Deepak Yes. is here. Yeah. Yeah, Deepak. Can you hear now? Yeah, yes, I can hear दीदी. Yes. If light के opposite में, मतलब put your light on your face so that we can see. Yeah, Anusha, ask what you were asking, Deepak. Where is Audrija gone? I'm here. Just put my camera off. Okay. I think we can now end the session because as this is the birthday of Gurpreet sir, he will be busy with phones and messages. So Yes, he yes. should have a time with family and friends also. Absolutely. So let's end it there, and we had a wonderful 1 hour 40 minute conversation session. with Gurpreet sir, and all credit and thanks goes to Deepak who No, Didi. contacted us with Gurpreet sir, and we wish a very healthy and happy life for Gurpreet sir, and a very creative life for Deepak Surana. Thank you. We are waiting many more books from your side. Thank you, Didi. Yes. And matlab Didi, it all started with Desh. My journey, like as Adrija Didi also knows, way back in 2016, if I remember rightly, in May. Deepak had actually commented us on our blog asking for the phone number of Captain Naveen Nagappa sir. Yes. So from there, our journey started with Deepak. And in fact, I was It's been almost 4 years that he is with us. I was doing an And internship. Desh is really happy to be a part of your writing, I mean, your creative journey. It's not just a part, it's a very big part.
Thank you so In much. fact, I make it a point that wherever I go, I mention the help I've got from this beautiful organization to tell. Matlab, it's a now Desh is an institution. It's no more it is people can matlab, you won't get so many people under one organization from the armed forces. We have martyrs families, we have people who have served in the army, people from across the walks of life are a part of Yes, this. yes. And it is a honor to just be a member of this great institution. And it's an honor for Desh to have you, the Absolutely. celebrity author, writer. When we went to Siachen, the commanding officer of the Siachen base camp was saying, "Oh, you are an author, you are a celebrity. Give me your phone number," like that. So he's a celebrity author also. Though I always say that Deepak वो तो बहुत बच्चा है. Still he is a celebrity. I know. Exactly. नहीं, बिल्कुल ही बच्चा. So Didi, let us end carry the on this session. conversation offline. Yes, sure, we can continue our yes. conversation on offline. So Sure. our sincere thanks to Gurpreet sir for providing us so much of time on his birthday, and thank you all of you for listening to us. Jai Hind. Be connected. We will obviously come up with many more surprises from our side. Thank you and Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind. চল কেটে পড়ি বাবা